सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है। सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिपियते। सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिपियते। गुरु रूप सत्संग जीओ विचार आप सरवण कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए होए जीव जंतु पशु पंछियां दी विचार सप दी विचार असी सरवण कर रहे हाँ। कल भी सरवण कीता है। आओ कुछ समा गुरु के विचार आप जी के सन्मुख रख सका। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आप सरवण कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच सप दा बहुत जिक्र आया है। बहुत सारिया पंक्तियां दे विच वख-वख पहलुआं दे विचार गुरु ने साडी चोली विच पाए हैं। मूल रूप दे विच मनुख कई जन्म धारण कर चुका है। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। कई जन्म साडे हो चुके हैं। जिन्हां जिन्हां जन्मां दे विचों असीं निकल के आए हाँ उन्हां जूनां दा उन्हां जन्मां दा कुछ सुभाव मनुख दे नाल भी आ जांदा। जिस तरह जिहड़ी चीज़ पक्की किसे दे नाल चमुट जाए ना उन्हूं लाहना मुश्किल हो जांदा है। जिहड़ा सुभाव मनुख दा पक जांदा ना उन्हूं छोड़ना मुश्किल हो जांदा है। जदों छोड़दा नहीं है तो फिर वो सुभाव साडे नाल अगले जन्म तक भी आ जांदा है। जैसे जिन्हां गलियां दे विचों जिन्हां राहां दे विचों असीं निकल के आउंदे हां उत्थों दी धूड़, उत्थों दी मिट्टी, उत्थों दी गंदगी या उत्थों दी खुशबू जैसे माहौल विचों भी असीं निकलदे हां उहदी कुछ कण साडे शरीर नाल लग के साडे वस्त्रां दे नाल लग के साडे घर तक आ जांदे हन। कुछ ना कुछ आ जांदा जरूर। जिन्हां जूनां दे विचों असीं निकल के आए हां कुछ ना कुछ सुभाव साडे नाल आ जांदा वे। ਐਵੇਂ नहीं महाराज ने कहा कि करतूत पशु की मानस जात शरीर ते मनुखा वाला बन गया है, लेकिन अंदर अजे स्वभाव पशुआं वाला है। अंदर एक ते एक कारण समझ लवो। दूसरा महाराज कहते ने फिर मनुख नाम भी ना जपे।
ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰ ਜਾਰੀ, ਤਿਉ ਜੀਵੇ ਸਾਕਤ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਸਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਸੱਪ ਦਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 97% ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3% ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 97% ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਥੈਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਏਗਾ, ਪੀਏਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੱਪ ਤੇ ਕੇਵਲ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 1000 ਨਹੀਂ, 2000 ਨਹੀਂ, 10,000 ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ
तां भी 2.5 करोड़ बंदे नहीं मार सकता, 100 भी नहीं मार सकता है। सप्पां दे अंदर इतनी जहर नहीं है, उन्होंने जहर बनाउण वास्ते समा चाहिए, 15 दिन 20 दिन, फिर जहर बनेगा, फिर डंग मारेगा। जब सप दे सिर दे विच जहर बहुत बन जाता ना, जब उसकी थैली भर जाती है, फिर वो लभदा है भी हुण किनू डंग मारा मैं, फिर लभदा है। जे 1-2 बंदे नहीं, 4 बंदे नहीं, 100 बंदे नहीं, हज़ारां नहीं, लखां नू डंग मार सकता है। इतना जहर इस दे अंदर है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि इतना जहर एक मनमुख दे अंदर, जिमें सप नूं असी भावें दुध पिलाईए, महाराज दी बाणी कहती है कि सप्पे दुध पियाईए। भाई गुरदास जी कहते हैं सप्पे दुध पियाईए विह मुखों सुट्टे। सप नूं दुध पिलाया जाए, सप मुख विचों जहर ही छोड़ दावे। भगत नामदेव जी कहते ने सांप कुंच छाड़े बिख नहीं छाड़े। सप अपनी सारी शरीर की जी कुंज आती है ना, उसकी जी चमड़ी आती है उपर दी, सारी त्याग देंदा वे। 4-6 महीनों विच, साल विच सप नूं अपनी उपर दी जी चमड़ी है उसनूं बदलना पैंदा वे। सारी शरीर की चमड़ी का तो त्याग कर देंदा है, पर बिख दा जहर दा त्याग नहीं करता है। सप दे विच इतना जहर नहीं जितना जहर मनुख दे अंदर है। मनुख भी गेड़ा मारे सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी अब पंक्तियां सरवण करो। सतगुरु कहते ने कि मनमुख मन ना भिजई अत मैले चित्त कठोर। मन मुख जिहड़ा अपने मन दे कहे अनुसार चलदा है, गुरमुख जिहड़ा गुरु दे कहे अनुसार चलदा है। मन मुख जिसदा मुख अपने मन वल है, मन ने जो कहा वो मन लैना होवे। गुरमुख जिहदा मुख गुरु वल है, गुरमुख जो गुरु दी शरण विच है, मनमुख जो मन दी शरण दे विच है। मनमुख नूं महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु अमरदास महाराज कहंदे ने कि मनमुख मन ना भिजई अत मैले चित्त कठोर। अत दे मैले होणगे, अंदर कालख भरी होवेगी, चित्त कठोर होवेगा। जिवें सप दा चित्त कठोर हुंदा वे। सप नहीं वेखदा भी सामने बच्चा है, बुढ़ा है, जवान है, पशु है, पंछी है, उन्हें डंग मारना ही मारना है। मनमुख भी इस तरह ही है। महाराज कहते ने सप्पे दुध पियाइए अंदर विष निकोर। गुरु अमरदास महाराज जैसे मनमुख जिदा अंदर मैला है, चित्त कठोर है, जितना मर्जी उसनूं गुरु का उपदेश सुनाया जाए जां जो मर्जी है खांदा होवे पींदा होवे, जहर ही बनाएगा। जिवें सप्पे दुध पियाइए अंदर विष निकोर। जिवें सप नूं दुध पियाइए ते अंदर जहर बनदा है उसदे, और कुछ नहीं होंदा है। जिवें भाई गुरदास कहंदे सप्पे दुध पियाइए विह मुखों सुट्टे। मुँह चो उसने जहर ही सुटना में, जहर ही उगलना है उसने। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दियां भी पावन पंक्तियां हन। महाराज कहंदे ने मनमुख हीरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा। मनमुख दा हिरदा बड़ा कठोर होंदा है, बहुत कठोर। अंतरकार करीठा, अंदर करीठा कहंदे ने कालख नूं, अंदर उसदे कालख ही कालख होंदी है, जहर ही जहर।
ਤੇ महाराज ने फिर प्रमाण दिता वे कि मनमुख की हालत कैसी आउंदी है। बिसियर को बहुत दुध पियाइए। बिसियर कहंदे ने सप नूं। सप नूं भावें जितना मर्जीए दुध पियाइए असी, बिख निखसे फोल फुलीठा। गुरु रामदास महाराज कहंदे ने सप नूं जितना मर्जी दुध पियाओ, जदों तुसीं फोल के देखोगे ना उहदे अंदर जहर ही मिलना है। मनमुख नूं जितना मर्जी है गुरु दा ज्ञान सरवण कराया जावे, शब्द सरवण कराए जान, पाठ करे या तीर्थां ते जावे, दान पुन करे, जो भी धार्मिक कर्म वो कर सकदा होवे, पर होवे मनमुख। महाराज कहते ने उन्हें जहर ही उगलना है। जहर कौआ कहाँ कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए। सप दे दुध पियाण नाल की होना है, बनना ते अंदर जहर ही है ना। उहदे मैं अर्ज करदा पिया एक मनमुख दे अंदर कितना जहर होंदा है। सप भी इतना जहर नहीं है जितना जहर एक मनमुख दे अंदर होंदा है। मन मुख जिदा मुख अपने मन वल है। परथरी ने दो पंक्तियां बड़ियां कमाल दियां लिखियां हैं। राजयोग परथरी। परथरी कहते ने कि नाहर के मूछन बसे, सिर पर बसे भुजंग, बिछुअन के पूछन बसे। कुछ प्रमाण दिते ने ते समझाण दी कोशिश कीती है मनुख नूं कि एक मनुख दे विच कितना जहर भरिया हुंदा है, कितना जहर है। नाहर के मूछन बसे, शेर दी जड़ी मुछ दा वाल है ना, उहदे विच जहर हुंदा है, बाकी शरीर विच जहर नहीं हुंदा है, सिर्फ मुछ दे वाल विच। औरंगजेब ने अपने भरा दारा शिको नूं शेर दी मुछ दा वाल चौलां दे विच मिला के खिला दिता सी। वो ऐसा बीमार होया, शाही हकीमां ने हाथ खड़े कर दिते सन, हुण असीं कुछ नहीं कर सकदे, इहदा बचना मुश्किल है। हुण गुरु हरराय साहब महाराज सच्चे पातशाह ने फिर किरपा कीती, अपने दवाखाने दे विचों हरना दे के लौंग दे के उहदा इलाज किया, तां वो बच सकिया सी। फिर परथरी कहंदे ने शेर दी मुछ दे वाल विच जहर है, बाकी शरीर विच नहीं है उसदे। नाहर के मूछन बसे, सिर पर बसे भुजंग। भुजंग कहंदे ने सप नूं। सप दे बहुत सारे नाम आए ने जिन्हां नूं असीं उपनाम कह सकते हैं। सप दे सिर दे विच जहर है, पर बाकी शरीर विच जहर नहीं है। कई ऐसे देश ने जैसे चाइना है, दक्षिण अफ्रीका है, और कई इस तरह दे, जापान है, उत्थे सप नूं भी खाधा जाता है। सिर कट के एक पासे कर देंदे ने, बाकी शरीर जिहड़ा है वो खा जाते ने, वो सारा खा जाते ने, क्योंकि बाकी शरीर दे विच जहर नहीं होंदा है, सिर्फ सिर दे विच जहर है। बिछुअन के पूछन बसे। बिच्छू दे पूंछ दे विच एक डंक हुंदा है छोटा जिहा, उहदे विच जहर है, बाकी शरीर विच जहर नहीं होंदा है। अगर वो डंक तोड़ दिता जाए ना, तो बाकी शरीर भावें जिउंदा बिच्छू होवे, बच्चे खेडदे रहन, कोई खतरा ही नहीं है। फिर जे उस पिछले डंक नूं तोड़ दिता जावे तां। परथरी कहते हैं कि इन्हां तिन्नां ही जीवां दे विच थोड़ा जिहा जहर है, बाकी शरीर विच जहर नहीं है। शेर दी मुछ दे वाल विच जहर है, सप दे सिर दे विच जहर है, बिच्छू दी पूंछ विच जहर है, बाकी तन विच नहीं है। पर हुण जिहड़ी गल परथरी कहंदे ने, नाहर के मूछन बसे,
सिर पर बसे भुजंग, बिछुअन के पूछन बसे साकत के अंग अंग। ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਕੇ ਅੰਗ ਅੰਗ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ਼ ਅਕ ਤਤੂਰਾ ਨਿੰਮ ਫਲ, ਮਨ ਮੁਖ ਵਸੇ ਤਿਸ ਜਿਸ ਤੂੰ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ਼ ਅਕ ਤਤੂਰਾ ਨਿੰਮ ਫਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਮਨਮੁਖ ਵਸੇ ਤਿਸ ਜਿਸ ਤੂੰ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਵੇ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਪੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਦ ਲੋਕ, ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਤਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡੰਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਆ सांपों को सपेरों ने यह कहकर, कैद कर दिया सांपों को सपेरों ने यह कहकर, इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है।
बड़िया सुंदर पंक्तियां ने, मैं फिर दोहरा देना। कैद कर दिया सांपों को सपेरों ने ये कहकर, इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। बंदे नू डंगण वास्ते तो बंदा ही काफ़ी है, सप्पां दी तो हुण लोड़ ही नहीं रही है। अज जितना खतरा मनुख नू मनुख कोलों है ना, इतना खतरा अज सप कोलों नहीं है। सानू इतना खतरा सप्पां कोलों नहीं है। मैं कल भी अर्ज कीती सी, सपनी अपने बच्चियां नू खा जाती है। ये सपनी दा साडे उत्ते परोपकार है। ना खांदी तो अज इतने सप हो जाने सन, मनुख दा जीवना ही मुश्किल हो जाना सी। अज मनुख दे रूप विच अनगिनत सप घुमदे पए ने। सारे माहौल नू जहरीला बना के रख दिता वे, सारे समाज नू जहरीला बना के रख दिता वे। इतना जहर अंदर। चलो दो पंक्तियां होर मैं आप जी दे सन्मुख रखना। कहंदा इंसान को इंसान डस रहा है, इंसान को इंसान डस रहा है, सांप खड़ा किनारे हंस रहा है। सप भी वेख के दंग रह गया भी हुण ते बंदा ही बंदे नू डंग मारन लग पिया वे। मेरी ते हुण कोई लोड़ ही नहीं रह गई है। इतना जहर मनुख दे विच है। सप दे सुभाव नू बदलिया नहीं जा सकता है। चलो उसनू तो कुदरत ने ऐसा बनाया है, पर साडे सुभाव नू ते असीं बदल सकते हैं ना। पर भगत नामदेव जी कहते हैं कि सांप कुंच छोड़े बिख नहीं छाड़े। सप दा जिस तरह सुभाव है ना कि अपनी कुंच नू त्याग देंदा है, पर जहर दा त्याग नहीं करता है, इसे तरह ही मनुख भी अपने इस जहरीले सुभाव का त्याग नहीं करता है। भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर संत ना छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत, मलयागर पुयंगम बेडियो तो शीतलता न तजंत। सप दा काम ही ऐसा है, भावें चंदन दे नाल भी लिपटिया होवे सप, पर वो जेड़ा उसका सुभाव है ना, मलयागर पुयंगम बेडियो तो शीतलता न तजंत। जेड़ा उहदा सुभाव बनिया होया जहर दा, उन्होंने त्यागदा नहीं है। चंदन दा सुभाव है ठंड देना, चंदन अपना सुभाव नहीं बदलता है। संत अपना सुभाव नहीं बदलता है। उहदा जो काम है परोपकार करना, वो भी अपना सुभाव नहीं बदलता है। लेकिन सप भी अपना सुभाव नहीं बदलता। उन्हें चंदन दे नाल लिपट के भी जहर ही उगलना है, जहर ही उगलेगा। और ऐसा देखा जाता है अज कई स्थानां ते असीं देखने आ, सारा सारा दिन गुरुद्वारे विच रहना, पाठ करने, सब कुछ करना, पर फिर भी जब बोलदे ना दो लफ्ज़ तो अंदरों जहर ही निकलदा वे। फिर जहर, भावें बड़ियां बड़ियां पदवियां ते बैठे होंदे ने, बड़े बड़े वड्डे चोले पाए होंदे ने, बड़े गुरमुख कहे जाते ने, पर होंदे बिल्कुल सप की तरह ने, जो चंदन नू लिपटे होंदे ने ते जहर ही उगलते हैं। होर कुछ नहीं होंदा है, बस जहर उगलते हैं। मनुख दी ये जहर निकल सकती है अंदरों। सप दा जिहड़ा अंदर सुभाव है ना, ये निकल सकता है साडा, जे किधरे असी परमेश्वर दे नाम नाल जुड़ सकीए। सप दे सुभाव नू बदलना मुश्किल है, लेकिन मनुख दे सुभाव नू बदलिया जा सकता है। इसनू गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अरदास करते हैं कि एक चीज मुझे देह और जहर चीज न भाया,
हे निरंकार मैनू एक तेरा नाम दी बख्शिश कर। बाकी संसार दियां जड़ियां चीज़ां हन, जो पदार्थ हन, वस्तुआं हन, सब जहर ही जहर है। एक तेरा नाम ही है जो अमृत है। बस एक तेरा नाम। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, बिसियर बिसु भरे हैं पूरन, गुर गरुड़ शब्द मुख पावेगो। जैसे सप ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਰੁੜੀ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। मैं अगे जदों गरुड़ का जिक्र आएगा जरूर मैं इस मंत्र का भी जिक्र करांगा। सप नूं वस विच करन वास्ते गारुड़ी मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। सप नूं वस विच कर लिया जाता है, उहदी जहर कढ़ दित्ती जाती है, निकल जाती है जहर। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, जे तू अपनी जहर नूं कढ़ना चाहता है तो फिर गुरु की शरण दे विच आ। गुरु तैनूं गारुड़ी मंत्र की बख्शिश करेगा। अंदर जिहड़ा मनमुखी रूपी सप है ना, जो जहर भरिया होया वे, सब बाहर निकल जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा। तो जदों गुरु मंत्र की बख्शिश कर देवेगा ना, तो फिर की होवेगा, माया भुयंगम ते सनेड़ न आवे, बिख चार चार लिव लावेगो। माया भुयंगम, माया रूपी सप जिहड़ा है वो फिर तेरे नेड़े नहीं आएगा। बिख चार चार लिव लावेगो। ज्यों ज्यों गुरु दा मंत्र बख्शिया होया सिमरन करेगा ना, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ज्यों ज्यों सिमरन करेगा, ज्यों ज्यों पाठ करेगा, जपजी साहब पढ़ेगा, ये जिहड़ा अंदर साडे जहर भरिया होया ना, ये सारा जहर जो है ये सब बाहर निकलेगा, साडा सब बाहर निकलेगा। ज्यों ज्यों अंदरों जहर बाहर निकलेगा, हिरदा साडा अमृतमई हो जाएगा। हिरदा जब साडा अमृतमई हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, असी फिर मनुख बन जावांगे। जे नहीं करांगे तो फिर अंदर जहर ही पैदा होवेगा। सप दा जहर तो फिर भी दुनिया दे काम आ रहा है, जिंदगी देंदा पिया, पर मनुख दा जहर तो किसी काम दा भी नहीं है, किसी काम दा नहीं। सप्पे दुध पियाइए, वेहू मुखों सुटे। गुरु रहमत करे, बख्शिश करे, असी गुरु दी शरण विच आइए, अमृत वेले दी संभाल करिए, नाम जपीए, बाणी पढ़िए, ताकि अंदर जिहड़ा जहर है ना, ये सारा बाहर निकले और गुरु दी रहमत बख्शिश दे असी पात्र बन सकीए। जहर जद किसी सियाणे वैद कोल चला जाता ना, वो फिर उसकी दवाई बना के दुनिया नूं फिर जिंदगी देंदा है। गुरु दे कोल चले जाइए, अपनी जहर जिहड़ी है वो गुरु दे चरनां दे विच रख दईए, फिर गुरु उसका सही इस्तेमाल करके एक नवे जीवन की बख्शिश कर देंदा है। जीवन साडा अमृतमई बन जाता है। महाराज सच्चे पातशाह जी किरपा करन, बख्शिश करन, असी गुरमुख बणीए, अमृत छकीए, बाणी अते बाणे दे नाल जुड़ीए, ताकि जीवन साडा जो है ये सफल हो सके। भुलां चुकां दी क्षमा, क्योंकि सप दे प्रथाएं कई पहलू सतगुरां ने बयान किए हैं। तो कल भी थोड़ा जा होर जो सतगुरु ने बख्शिश की है विचार सप दी आप जी दे सन्मुख रखांगे। आप जो कथा सरवण कर रहे हो, बहुत संगतां दा प्यार मिलता पिया है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, फोन भी आ रहे ने। आप जो दास का चैनल है, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पेज कथा सागर, आप उसनू फॉलो करो, शेयर करो, वध तो वध संगतां तक पहुँचाओ। यूट्यूब ते सारी कथा
ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਰੰਤ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹ YouTube 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। YouTube ਚੈਨਲ ਕਥਾ ਸਾਗਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ, ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।